हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आई हूँ रोहिणी अपने घर पे। तो आज मैं ये जो ब्लॉग बनाने का मेरा मोटिव है वो ये है कि मेरा छोटा भाई है जो कि एक अच्छा आर्टिस्ट है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरह की आर्ट करता है। तो गाइस उसने घर में ही अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो स्टूडियो। आइए चलते हैं। तो गाइज ये है स्टूडियो और यहाँ पर है ये मेजरमेंट सेक्शन है इसका। और ये देखिए छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जो उसने बना रखी हैं, आर्ट्स। और फुल डिटेल्स में वही बताएंगे आपको इन सब के बारे में। ये है पेंटिंग सेक्शन और ये है इधर एडिटिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है डिजिटल। और ये लैपटॉप है इनका और थोड़ा म्यूज़िक सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो फुल स्टूडियो इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है। अब आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी केतन से। नाम है उनका केतन। So guys, he is Ketan. आज केतन हमारे साथ है. So Ketan, tell us a little bit about you and what you do exactly do. Everyone, I'm based out of Delhi. I've started working as an artist. It's been almost 8 years I've been doing this, and from my childhood only I had this urges to create something unique, something that I love to do, and that's what I like to. I like to listen to the music. Like to make art. I like to travel also, and I'm a fun-loving person. So it's quite good. Like it's been 8 years you are working on your art and your work. So what is your exact journey? How you started? How you want to become an artist, or you need to take your art to the next level? So what kind of art work you do? So the style that I am doing is called visionary art. It's kind of art where you don't paint what you are seeing around. The style is basically about what you see inside your mind. Like you create vision and then you put it on the canvas board. सो गाइज मैं बताता हूँ, मतलब इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में जो विजुअलाइजेशन हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं बाहरी दुनिया में, और हम जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, हमारे माइंड में उसका एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसकी एक थिंकिंग आती है कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। सो उसी की एक आर्ट का एक जो मतलब एक आर्टिस्ट यही देखता है बाहर की दुनिया में कि हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या सोचा। सो उसी के बेस्ड आउट ये सारी आर्ट है जो इसके दिमाग में आती है। वो ये उस पर ये मतलब जो भी दिमाग में आया वो अपने पेपर पे, डिज़ाइन पे, ये जो जितनी भी जिस तरह की आर्ट हमने दिखाई आपको पहले भी और अभी केतन भी आपको दिखाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग वो आर्ट उस पर बना देता है। इसमें कुछ विजुअलाइजेशन है, खुद की जो क्रिएटिविटी है वो भी इंक्लूडेड है। डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट? I started my journey. It's been almost 10 years that I started painting. I used to work in call centers, BPOs. That's what I did after I completed my 12th. And I worked in BPOs almost for 3 to 4 years, where I was working just for the sake of money, but I was not getting that satisfaction, because when I was a child there was this creativity that used to come to me, and then while working in the BPOs I was not able to spend that energy into creating. So I used to work. While working I used to sketch on notepads. If I had a pen I would start somewhere, and then people around me motivated me to do a course, to become a graphic designer, to do something creative. And then that was the point where I switched from BPOs and started my journey as an artist.
in the beginning I was making small sketches. I was making small digital paintings. I was preparing like charts and all. What kind of collection, what kind of products do you have, and if you have any collections to show the viewers to our YouTube channel, can you show something? Well, I have a wide variety of products in my collection. I love to make canvas. Canvas is the thing that I started recently. So I was doing on paper, then I started doing on different kind of bases. I have in my collection bowls, and then canvas paintings. I make digital designs also for clothing brands who are into art based clothing, and I have fridge magnets, small things that I we used to sell them in my stalls, like small flea market pop-ups. So where do you sell these products, in the normal market or online, or do you have a flea market or something, like what you have? So I have different flea markets that I go to. I was going to Goa for New Year's. I go to mountains for party season when the season opens. I now mostly what I'm trying to do is I'm trying to generate more traffic on my Instagram account so that I am able to sell my things online also. सो गाइज अभी क्या है, मैं जो आपको कलेक्शन दिखाता हूँ, जो हमारे पास अभी जो इसके कैनवस पेंटिंग्स जो है, सो ये कुछ बहुत पुरानी मतलब रखी हुई हैं, जो कि जब केतन ने करियर स्टार्ट किया था अपना 8 साल पहले, तो तब से लेकर अब तक का कलेक्शन है. थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, पुरानी, एक एरा. सो लेट्स शो सम स्किल्स लाइक व्हाट ही हैज़ डन इन हिज पास्ट. सो यहाँ से मतलब ये पहले स्टार्टिंग थी पेपर वर्क से स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे इसके ये सारे डिज़ाइन इसके खुद के हैं. ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन हैं, देख रहे हो कितनी मोटी बुक है. सो ये सब इसने खुद से बनाया, हैंड पेंटेड है सब. ये जो जितने भी कैनवस पेंटिंग है, एनिमल्स है या फिर फेसेस है, अब ये जैसे ये फेसेस है ये भी इसने बनाया है. और मतलब वैरायटी ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं ना. अब जैसे ये देखो, ये टाइगर बनाया हुआ है, डॉट पेंटिंग डॉट से बना हुआ है. फिर ये फेसेस के इसने ये जब ये स्टार्टिंग कर रहा था, सो ये उस टाइम की आर्ट है इसकी, ठीक है. अब ऐसे ही और भी बहुत सारी जो इसमें देखते हैं, ये इसने बनाई थी. सो ये बुक के अंदर इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड. अब ये देखो, बहुत ही डिटेल्ड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना जिसको बोलते हैं बहुत ही सॉर्टेड, सिंपल, स्वीट, वो वाला है. लेकिन इसमें समझने पे जाओगे तो बहुत ही मतलब पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है इसके अंदर. अगर समझने पे जाओगे, कुछ पेंटिंग ऐसी है कि जो रिलेट करती है नॉर्मल अपने नेचर से, मदर नेचर से. सो उस तरह की भी पेंटिंग है. लाइक दिस इज़ द थर्ड आई, मतलब ये एक आदमी बनाया हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे भी आँख है. मतलब बहुत ही यूनिक क्रिएटिविटी है. सो अभी देखते हैं और भी कुछ यूनिक इसमें दिखेगा. कोई अपने पास जो कलेक्शन के तुमने बताई, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे बाउल्स वगैरह तुम कह रहे हो, उसका कुछ शो करने के लिए हो, तो can you show something? Yes, I will take you in my room and I will show you So some let's of my take a tour of Ketan's studio now. So he will give us a brief tour about his studio and let's go. So Ketan, let's start. So हम अभी देखते हैं, ये आ गए हैं स्टूडियो के अंदर. So ये अभी केतन ने रिसेंटली बनाया घर में अपना खुद का स्टूडियो. So यहाँ से बताओ कहाँ से स्टार्ट करोगे सबसे पहले? मैं अपनी पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बेसिकली डिफरेंट पीसेज हैं. जैसे ये वाला पीस अगर ऊपर देखोगे तो ये मैंने लॉर्ड नटराजा को बनाया है. लॉर्ड नटराजा को मैंने अपने वे में अपने तरीके से इमेजिन करके हुए इसको पेंट करा है. उसके बाद नीचे अलग ये मेरा स्केच था पहले. ये तो मोस्टली जो इसमें काफ़ी ऐसे हैं जो मैंने पहले स्केचेस बनाए थे, उनके बाद मैंने इनको कैनवस पे डाला है. So जैसे इनकी इनिशियल स्टेज का कोई हो कि जहाँ से तुमने मतलब आता है, जैसे क्या प्रोडक्ट आता है, क्या इसका एक रॉ प्रोडक्ट कोई अपने पास पड़ा है? हाँ देखो, जैसे अभी ये पीस है,
ये पीस मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने बेसिकली अभी पेंसिल से स्केच बनाया है, इसके बाद मैं इसमें कलर करना स्टार्ट सो इसका जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमारे व्यूअर्स को दिखाना ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये अभी इस पे काम चल रहा है, ये भी अनफिनिश है, अभी इस पे भी कंप्लीट करना है। बाकी ये पीस है मेरा जो मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट करा था, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें टाइम देना चाहता हूँ। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं जितना ज़्यादा टाइम लूँगा उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ बन के आएगी। ये है मेरा सबसे अभी तक का सबसे बिगेस्ट पीस। ये एक्चुअली मैं मदर गॉडेस अर्थ को के लिए बनाया हुआ है, या फीमेल के अलग अलग स्टेजेस, लाइफ के स्टेजेस को मैंने दिखाया हुआ है इसमें। फिर अलग ये मेरा एरिया है जहाँ पर मैं अपना डिजिटल डिज़ाइन करता हूँ। जैसे कुछ स्केचेस होते हैं जिनको मैं डिजिटल करके ब्रांड्स को देता हूँ। सो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो एक प्रोडक्ट अगर किसी को कोई ख़रीदना है तो कितना एक नॉर्मल कॉस्टिंग क्या रहेगी उसकी? मेरे प्रोडक्ट्स की रेंज जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली 500 से 1000 से स्टार्ट होती है। तो अपने पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 500 से स्टार्ट होता हो? अभी तो completed one? अभी जैसे अभी 5 बार मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाले जो पीसेस हैं ये एक्चुअली में 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट लॉर्ड शिवा, ये 1000 रुपीज़ का है। फिर उसके साइड वाला 1000 रुपीज़ का है। फिर ऊपर ये इसके प्राइसेस अगर साइज़ बड़ा होता है तो प्राइसेस अप हो जाते हैं। जैसे वो 2000 का हो गया, ये 2500 का हो गया। फिर बड़े बड़े पीसेस, जैसे ये पीस है, ये वाला पीस अगर मैं सेल करूंगा तो इसको मैं 5000 6000 से कम का सेल नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा साइज है। इसके अंदर कोई क्वालिटी ऐसी, मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों ले? इसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है? बेसिकली मैं जो कलर यूज़ करता हूँ वो यूवी ग्लो इन द डार्क कलर्स है, जो कि एक स्पेसिफिक लाइट होती है यूवी लाइट। उस यूवी लाइट को ऑन करने के बाद इसके जो कलर वो बाहर ग्लो करके आते हैं। सो दिखाओगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ बिल्कुल, मैं अभी लाइट ऑन कर रहा हूँ। सो गाइस अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो यूवी लाइट है जिसके बेसिस पे ये चमकते हैं। बाकी अंधेरे में भी ये चमकते हैं, जैसे मैंने देखा हुआ है पहले भी। चलिए अभी मैं लाइट बंद करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिखता है अंधेरे में। सो गाइस देख रहे हो कितना ही सुंदर, कितना ही यूनिक। सो अभी ये यूवी लाइट ऑन करी है, ठीक है। सो ये यूवी लाइट है, और जहाँ जहाँ भी ये जो साइन अभी ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें लाइट जल रही हो, सेम लाइक दिस। तो ये इतना ही सुंदर लगता है। जैसे ये अभी दिखाया नटराज गॉड लॉर्ड नटराज है यहाँ पे, और ये देखो तो ऐसा लगता है जैसे इसमें लाइट लगा रखी हो। और इधर भी देखो, सो ये इसको बोलते हैं ग्लो इन द डार्क। सो ये देखो कितनी ही सुंदर लग रही है, एकदम यूनिक। अभी जो पेंटिंग अभी जिस पे काम चल रहा है वो भी देखो, ऐसा लग रहा है इसके अंदर लाइट जला लगा दी हो, जैसे फोटो के अंदर लाइट लगा दी हो। और जहाँ जहाँ भी ये पेंटिंग पे कलर करता है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ लेट्स सपोज थोड़ा बहुत पेंट गिर गया वो भी फर्श पे चमक रहा है, लेकिन हम ये साफ करेंगे तो नहीं दिखेगा। लेट्स सपोज ये नॉर्मल लाइट में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये देखो जहाँ जहाँ भी कलर पड़ा है थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा है। मैं अब यूवी लाइट ऑन कर दूंगा ताकि हम इनकी ग्लो इन द डार्क वाला इफेक्ट देख सकें। ऑफ, राइट, ऑफ करेंगे अब हम। तो गाइस ये देखो अभी यूवी लाइट ऑन है, ठीक है, देखो आपके सामने। और अब हम यूवी लाइट ऑफ करने जा रहे हैं। तो इसका देखो जब ये लाइट ऑफ हो गई अब भी ये चमक रही है। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा रूम में या जैसे बाहर आउटसाइड, जिस पे ग्लो इन द डार्क वाला विदाउट यूवी कलर है, लेट्स सपोज ये जो पेंटिंग है अभी आप देख रहे थे बिल्कुल सब ब्राइट चमक रही थी। अब जैसे ही लाइट ऑन करेंगे चमक जाएंगी। लाइट ऑन करना, ये देखो चमक गई, और बंद करना, अब नहीं दिख रहा कुछ भी। सो ये यूवी पेंटेड है, ये पेंट बहुत महंगा आता है। और ये एक नॉर्मल, ये कौन सा पेंट है किधर? ये ग्लो इन द डार्क पेंट है। सो ये पेंट की भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। अभी देखो जितना ज़्यादा अंधेरा होगा रूम में उतनी ज़्यादा शाइन करेगी। बेसिकली ये रेडियम जैसा है, ये चार्ज होता है वाइट लाइट से, उसके बाद ग्लो करता है ये वाला। हाँ, और ये वाला जो है ये यूवी है, सिंपल यूवी। लाइट जलाना। तो गाइस अभी लाइट ऑन करते हैं, नॉर्मल अपना जो नॉर्मल लाइट है। तो उसमें देखना अब ये वापस से आ गए हम वाइट लाइट में। सो ये वाइट लाइट से भी चार्ज हो जाएगी, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये है।
और ये सिर्फ यूवी लाइट से चार्ज होगी, इसलिए ये ग्लो साइन जो होता है इसका, ये मतलब जो यूवी लाइट है उसी से ही ग्लो करेगी। अदरवाइज ये वाइट लाइट जो अपनी नॉर्मल ट्यूब लाइट है उससे भी चार्ज हो जाएगी। देन रात में आप लाइट में ले जाओ तो ये रात में जितने भी अंधेरा होगा वो चमकेगी। तो गाइज़ अभी कुछ और प्रोडक्ट्स जो हमारे पास रखे हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट जो भी आपको ऑर्डर चाहिए वो बन जाएगा। जो डिज़ाइन चाहिए कस्टमाइज, जैसा डिज़ाइन कहोगे वैसे बन जाएगा। सो ये भी, ये देखो एक बाउल है, ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा बाउल है। सो ये भी हैंड पेंटेड है, पीछे से देखो ये इसका पीछे से डिज़ाइन है और ये आगे से, ये सब हैंड पेंटिंग है। और ये भी ग्लो इन द डार्क है, जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। ये वाइट लाइट से चार्ज हो जाएगा नॉर्मल। सो एक येरा डिज़ाइन, एक येरा डिज़ाइन। सो केतन इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी? ये बेसिकली जो इसका जो प्राइस रेंज है वो 1000 से स्टार्ट होता है। 1000 के बाद इट गोज़ अप टू 5000 डिपेंडिंग कि आप किस तरह का डिज़ाइन दे रहे हैं। अगर ज़्यादा काम है तो फॉर श्योर ज़्यादा पैसे। सो अगर जैसे ये फ्रिज मैग्नेट्स है, हाँ, ये मैंने बेसिकली ये जो चीज़ें बना रखी हैं मैंने फ्लिया मार्केट में सेल करने के लिए बना रखी है, जो कि ईजिली बिक जाए। जैसे फ्रिज मैग्नेट है, मैं फ्रिज मैग्नेट 400 पर पीस, 500 पर पीस। फिर ये इसके बाद यहाँ पर नीचे अगर देखोगे तो लाइटर केसेस हैं, लाइटर केसेस हैं जो कि मैं सेम प्राइसेस 300 400 का बेचता हूँ। फिर ग्लो इन द डार्क कलर डाला हुआ है। मतलब कुछ एसेसरीज मेरे पास स्मोकर्स के लिए भी है, जो पीपल हु लव टू स्मोक, फॉर देम। राइट। सो ये जो है लोग लेके जाते हैं शो पीस में लगाने के लिए। इस पे क्या है, इस पे अपने भगवान जी प्रिंट करवा लेते हैं, शिव जी, गणेश जी, या अपने डॉग की फ़ोटो, या अपने किसी भी जो भी लव्ड वन है या जो भी लव्ड वन है उसकी फ़ोटो प्रिंट दे देते हैं इसको, और वो प्रिंट करवा देता है। मतलब ये उनको फ़ोटो दो आप और प्रिंट करवा लो, ठीक है। और ये जो आप डिज़ाइन दोगे वो बना के दे देगा। अब जैसे इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है अजना और नियॉन भी लिखा होगा। सो अजना इज़ द ब्रांड। सो इसके ब्रांड का नाम है नियॉन अजना, और इस पर भी लिखी हुई होगी 100%। सो ये सब हैंड पेंटेड है। हाँ, इस पर भी देखो लिख रहा अजना, AJNA। सो आप देखना, बताना वीडियो का क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, बाकी कमेंट ज़रूर करना। और मैं डिस्क्रिप्शन में केतन के चैनल का लिंक और केतन के पेज का लिंक डाल दूँगा। सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे। और अगर कुछ आपको ऑर्डर करना है, लेट्स सपोज कुछ भी आइटम, पेंटिंग हुई या फिर जैसे बड़ी वाली पेंटिंग है या कुछ भी आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, तो मैं उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप लोग कुछ भी कस्टमाइज़ करवाओ और उसको ऑर्डर देके आप आगे अपने लिए ऑर्डर कर सको। ऑलराइट गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं एक नए अच्छे और बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ। बाय बाय।